सरस्वती साहू। Hey guys, welcome back to another video. इस वीडियो में we are going to compare two strings and we are going to learn different type of methods present in Java which are used to compare two strings. With compare करने के लिए we have different type of methods like we can use equal to operator, we can use some methods equals, compare to and so on. So in this video we are going to study all this. कैसे हम अपने दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करते हैं। अभी तक हमने कंपेयर करना सीखा, कंपैरिजन ऑपरेटर सीखे, व्हाट आर द ऑपरेटर्स टू कंपेयर टू वैल्यूज, बट इन स्ट्रिंग्स देयर इज समथिंग डिफरेंट बिकॉज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। वी नो that strings are immutable in Java, and also strings are considered as objects, not as values. So here the things are somewhat different when we have to compare the two strings. For example, when we compare two variables like a is greater than b, a is less than b, but in string we cannot compare that s1 is greater than s2 or not. This is wrong. We can do this for the value, for the set of values, for the numbers, the decimals, for the characters as well, but we cannot do for the strings. तो Java में ये चीज डिफरेंट हो जाती है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कर सकते हैं कंपेयर यूजिंग ऑपरेटर्स, बट इन जावा वी हैव टू नो these methods used to compare two strings. So for example, in as we know that so there are some relational operators like equal to, not equal to, and greater than, equal to, less than equal to, greater than, less than. So these operators we have in comparison, operators used for comparing two values. But for strings, we have two type of methods, that are equals operator and the compare to. So equals operator is used to compare the two strings, whether the two strings are equal or not, and the compare to is used to know which string is greater, which string is greater, or which string is smaller. कि अगर हमको दो strings को, दो sentences को, दो words को alphabetical order में arrange करना है, then we will use compare to method in Java. So let's start with the first method, that is using equal to operator. So if I use the equal to operator, then will Java give me error? No, because we can use double equal operator to compare two or more than two objects. We can compare to the objects. So similarly in Java also, in string also, we can compare two strings कि वो दोनों strings equal हैं या नहीं, using our equal to operator, just simple. But हमको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, हमको ध्यान रखना है declaration का, that we know we can declare a string like this, which is using new operator, जिसमें हम एक न्यू ऑब्जेक्ट बना रहे हैं स्ट्रिंग का, and we can also declare a string like this within double quotes. Okay, by both methods we can declare a string. So if they are referring to the same object, actually double equals to क्या करता है, वो चेक करता है that both values are referring to the same object or not. For example, if I say a is equal to 5 and b is equal to 7, now these two 5 and 7 are the part of same type of object, that is int. Okay, inside the int object they will be created. But अगर मैं string बनाऊंगी and I am saying that create a new object of string type which is containing 8, then if I compare this S3 with this S2, S2 is double equal to S3, then it will give me false. लेकिन हमको क्या चेक करना है, हम बाहर से देख रहे हैं इसकी वैल्यू कि भाई इसकी वैल्यू भी a है, S2 की वैल्यू भी a है एंड S3 की वैल्यू भी a है, लेकिन तब भी हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा false, बिकॉज यहाँ पर जो S1 है that is a single value and here our S3 is an object, is a different object. तो डबल इक्वल्स क्या चेक करता है, एक्चुअली कंपेयर ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस, not the values. But we as a user, as a developer wants to compare the values of both the things. So we have to figure it out कि भाई हमारा डबल इक्वल्स टू है वो ट्रू करेगा या फॉल्स करेगा, है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी वैल्यू है. I hope you got this point. So let's understand this in a diagrammatical way.
ठीक है, तो मैंने एक पिक्चर क्रिएट करी है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज S1, तो S1 में मैंने ए को स्टोर किया, तो ए कहाँ स्टोर हो गया? हमारे स्ट्रिंग पूल में। ए स्ट्रिंग पूल है, here all the strings are stored. Okay, S2 is also getting stored in the same pool, that is value A. क्योंकि हमने उसको A वैल्यू दी, उसने चेक किया that there is an A, capital A, so now S2 is also referring to the same object, same reference. S3 को हमने बनाया new string capital A. This is creating a new object inside the Java storage. Okay, and S4, when I say that S4 is equal to small a, then small a occupies a different memory location but inside the string pool. So when I compare the values of S1 and S2, S1 and S2 are same because they are referring to the same object. तो हमारा डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर है, वो क्या रिटर्न करेगा? कैपिटल ए इज इक्वल टू कैपिटल ए, दैट इज ट्रू. नाउ S1 will be compared to S3. S1 will be compared to S3. Now S3 is comprising a different type of object, that is capital A, which is whole different position. So that's why our equals operator will return false because they are not equal, they are not in the same object location. And when I compare string 1 to string 4, the values are different. Obviously, so the values are different, the locations are different. That's why it's giving false. So inside the memory location of Java, this is what something like this is happening when we're assigning a value to string. So ये हो गया पहला method. This is the first method to compare two strings in which we are checking whether our two strings are equal or not. Now second method is equals method. अब स्ट्रिंग की बारी आए तो भाई हम कैसे कंपेयर करें? हाउ डू वी नो, में हम पहले से कैसे पता कर सकते हैं कि दोनों स्ट्रिंग हमने, अभी तो यहाँ पे 2 या 3 था, मे बी हो सकता है एक बड़ा प्रोग्राम हो और वहां पर काफी स्ट्रिंग्स हो, तो हाउ कैन वी नो कि हमने स्ट्रिंग को कैसे उसको डिक्लेयर किया है, हम कैसे उसको कंपेयर करेंगे? यूजिंग एन इक्वल्स ऑपरेटर. सो इट इज द प्रायोरिटी कि आप हमेशा इक्वल्स मेथड को यूज करो व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग्स कि वेदर दे आर इक्वल और नॉट. अगर आपको दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है प्रोग्रामिंग में, तो आप हमेशा इक्वल्स ऑपरेटर्स को यूज करो, सॉरी इक्वल्स मेथड को. मेथड को कैसे यूज करते हैं हम? हमने लगाया अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग को, लिखा फर्स्ट स्ट्रिंग डॉट, जैसे हम sc डॉट नेक्स्ट इंट लिखते हैं यूजिंग स्कैनर, ऐसे ही हम लिखेंगे s1 दैट इज आवर फर्स्ट स्ट्रिंग. फिर हम लिखेंगे अपना मेथड का नाम दैट इज इक्वल्स, देन हमारी सेकेंड स्ट्रिंग लाइक दिस, एंड ये हमको क्या रिटर्न करेगा कि दोनों स्ट्रिंग्स की वैल्यू सेम है या नहीं. Okay, now the equals operator will compare the value, not the object reference. Okay, if all characters are not matched, it return false. Obviously, now the small a is not equal to capital A. Small a is not equal to capital A. So I hope you get this. This is very easy, but you have to learn what method we have to use. You have to memorize that. So एक बार और देख लेते हैं हमारा diagram. How can we represent a Java heap? So similar way में store होंगी values when I am declaring a, capital A inside double quotes. The capital A will be stored here. Another capital A will be stored. S1 and S2 values are same. Now S3 को हमने store किया different location पे using new operator, and then S4 will be stored like this. Now I am using equals method. So when I comparing the first two strings, it will return true, obviously. Secondly, when I compare S1 to S3, it will also return true because the values are same, and equals method will check the values, not the location. Next is our third, that is equals ignore case. Now अब आप बोल रहे होगे यार कैपिटल ए और स्मॉल ए है तो सेम ही लेटर, बस उसका केस डिफरेंट है. तो ऐसा कोई मेथड नहीं है जिसमें हम केस को इग्नोर कर पाए कि इफ आई वांट टू कंपेयर प्रगति टू प्रगति, ओके, और प्रगति, these three words are same, बट अगर हम इक्वल्स ऑपरेटर इक्वल्स मेथड को यूज करेंगे तो वो हमको क्या देगा? फॉल्स देगा कि ये तीनों सेम नहीं है. तो आई वांट कि ऐसा मेथड हो जो इन तीनों को एक ही माने, मतलब इन तीनों का जो केस है, लोअर केस अपर केस, उसको कंसिडर नहीं करे. तो ऐसा ही मेथड है जावा में, दैट इज इक्वल्स इग्नोर केस. यू हैव टू रिमेम्बर द
कैपिटल लेटर्स कि कहाँ पर कैपिटल लेटर्स। एक कन्वेंशन है कि अगर आपके फंक्शन में एक से ज्यादा वर्ड्स हैं और आपको उनको ज्वाइन करना है अपने फंक्शन नेम में, तो आप फर्स्ट वर्ड को पूरा स्मॉल रखो, सेकेंड वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल रखो, दैट इज आई, एंड फिर से अगर एक और वर्ड है तो उसका भी जो फर्स्ट लेटर है उसका कैपिटल रखो। तो इससे इजी होता है पढ़ने में, एंड हमेशा हमको याद रहेगा कि अगर कोई भी ऐसा फंक्शन हमें मिल रहा है, देन उसका कन्वेंशन समवॉट लाइक दिस ही रहेगा हमेशा। आप sc डॉट नेक्स्ट इंट लिखते हो तो नेक्स्ट इंट में भी अगर आप ध्यान दो, फर्स्ट वर्ड पूरा स्मॉल रहता है एंड सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है। ओके, तो ऐसे ही जावा में कन्वेंशन है कि आप कोई भी मेथड को यूज करो, प्री डिफाइंड मेथड में सबका कन्वेंशन आपको नेमिंग कन्वेंशन सेम मिलेगा। सो कमिंग ऑन टू दिस, दैट अगर हम इक्वल्स इग्नोर केस करेंगे, सो नाउ आवर कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल ए। ठीक है, कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल ए, इट इज ऑब्वियस, वेरी ऑब्वियस। लेकिन नाउ कैपिटल इज आल्सो इक्वल टू स्मॉल ए। अगर आपका लेटर सेम है इन डिस्पाइट ऑफ इट्स केस, देन यू कैन से दैट इक्वल्स इग्नोर केस विल रिटर्न ट्रू। इसका भी डायग्राम रिप्रेजेंटेशन सेम रहेगा, इट्स नथिंग डिफरेंट। आपको सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे। यू वांट टू रिवाइज, यू कैन रिवाइज using compare to method. This is very important, and this is the reason why I made this video separate, that is compare to method. ये लोगों को समझ नहीं आता है ये compare to क्या है। आप कितना भी बुक से पढ़ लो, आपको पहली बार में समझ नहीं आता है, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना, स्किप मत करना। ठीक है, एंड अगर स्पीड ज्यादा करी है तो स्पीड को कम कर लेना। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड इज कंपेयर टू मेथड, जो कि हमको बहुत डराता है, जो हमें नहीं पता होता है इसका मतलब। इसमें सिंपल सी मतलब ये है कि आपके पास दो स्ट्रिंग्स है। अगर मैं आपसे बोलूं कि फॉर एग्जाम्पल दो वर्ड्स ले लेते हैं, लेट सपोज जावा एंड पाइथन, एक और ले लेते हैं जावास्क्रिप्ट। These three words I am having. Okay, now I am asking you to arrange them in alphabetical order. तो आप कैसे चेक करोगे? जब पहली बार अल्फाबेटिकल ऑर्डर सुना होगा बचपन में, टीचर ने बोला होगा, तो कैसे करते थे? टीचर ने क्या सिखाया था कि फर्स्ट वर्ड चेक करो, फर्स्ट लेटर चेक करो सारे उसका। सबसे पहले फर्स्ट लेटर चेक करो, उनमें देखो सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा है जे, एंड जे हमारा दो बार रिपीट हो रहा है, तो अब इन दोनों में से कोई एक छोटा होगा। देन हम सेकेंड लेटर चेक करेंगे, ए, इट इज ऑल्सो रिपीटेटिव, इट इज ऑल्सो कॉमन, जावा इज कॉमन, सो नाउ जावा इज आर फर्स्ट एंड सेकेंड इज जावास्क्रिप्ट, बिकॉज जावास्क्रिप्ट की स्पेलिंग बड़ी है एंड जावा की स्पेलिंग छोटी है, एंड थर्ड विल बी पाइथन। ऐसे ही हम करते थे। तो ये चीज हम अपने कंप्यूटर से अपनी प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे कराएं? अगर मैं आपको प्रोग्राम दूं कि आपको 3 स्ट्रिंग्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, या काफी स्ट्रिंग्स हैं या स्टूडेंट्स के बहुत सारे, मेरे पास डेटा एक एरे है उसमें 50 स्टूडेंट्स का डेटा है और उन सबको आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, सो हाउ यू विल बी डू दैट? कैसे करो? यूजिंग कंपेयर। कंपेयर टू मेथड कंपेयर करता है दो स्ट्रिंग्स को लेक्सिकोग्राफिकली, इट मीन्स by its letters, by its Unicode value of each character in the string. If two strings are different, then they have different characters at some index, and that is a valid index for both strings, or the length are different, or both. या तो लेंथ डिफरेंट होगी, जैसे मैंने आपको जावा एंड जावास्क्रिप्ट का बताया कि भाई फर्स्ट 4 लेटर्स कॉमन थे एंड दोनों की लेंथ डिफरेंट, तो उसकी लेंथ ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग बढ़ी हुई है और ये स्ट्रिंग छोटी है। ठीक है, अज्यूमिंग, लेकिन हमें जावा कैसे बताया कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है कौन सी स्ट्रिंग छोटी है? अगर हम दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं, वो कैसे बताया? और कौन सी विच स्ट्रिंग इज ग्रेटर और विच स्ट्रिंग इज स्मॉलर, बाय हाउ मेनी कैरेक्टर्स, बाय हाउ मेनी लेंथ, कैसे बताएंगे? दैट्स व्हाई अगर आपने नोटिस किया हो कि कंपेयर टू का जो रिटर्न टाइप है दैट इज इंट, कंपेयर टू का रिटर्न टाइप है इंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल अज्यूमिंग इंडेक्स आई, क्योंकि हमें पता है हम इंडेक्स पे काम करते हैं प्रोग्रामिंग में। अगर मैं दो स्ट्रिंग्स लिए हैं, लेट्स सपोज प्रगति एंड श्रुति, ठीक है, तो ये इंडेक्स पे काम करेगा। इंडेक्स क्या लेगा? प्रगति का पी का 0 1 2 3 4 5 6, लाइक सिमिलरली 1 2 3 4 5।
Okay. Assuming index I where the characters are different, then compare to will return first string dot caret I minus second string dot caret I. क्या करेगा वो? दोनों की स्ट्रिंग्स के जो यूनिकोड है, आपने पढ़ा हुआ है आपने पहले की यूनिकोड्स क्या होते हैं? एस्काई कैरेक्टर्स। हर कैरेक्टर का एस्काई कैरेक्टर एस्काई कोड अलग अलग होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ ये सबका क्या होता है। आप बहुत इजीली याद भी कर सकते हो या देख सकते हो। तो कैपिटल ए टू कैपिटल जेड हमारे जो कोड है वो चलता है 65 से लेके 90। स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक चलता है 97 से लेके 122। 1 से लेके 0 से लेके 9 तक चलता है 45 से लेके 57। ओके, दीज आर द यूनिक कोड। फॉर एग्जांपल मैंने बोला एप्पल, ठीक है, तो ए का हमारा होगा 65 एंड सिमिलरली मैंने बोला यहाँ पर एप्पल दैट इज स्मॉल, तो यहाँ पर इसका होगा 95। तो अब हम दोनों कंपेयर करेंगे यूजिंग कंपेयर टू। तो कंपेयर टू क्या करेगा? अगर ये मेरी फर्स्ट स्ट्रिंग है एंड ये मेरी सेकंड स्ट्रिंग है, तो इन दोनों जो फर्स्ट लेटर है कैरेक्टर कैरेट आई इसके यूनिकोड्स को सबट्रैक्ट कर देगा। 65 माइनस 95 दैट विल बी माइनस 35। sorry 97, sorry, yes 90, sorry 97, so it will be minus 32। ओके, माइनस 32। अब माइनस से और प्लस से क्या होगा? अगर मान के चलो ये हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग होती एंड ये हमारी सेकंड स्ट्रिंग होती, तो इसका आंसर क्या होता? 97 माइनस 65 दैट इज 32। तो हम माइनस एंड पॉजिटिव से पता लगाते हैं कि हमारी जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो बड़ी है या छोटी है। ओके, आगे देखते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। कंडीशंस, देयर आर थ्री कंडीशन फॉर कंपेयर। ठीक है, सबसे पहले आपने कंडीशन देखी, अगर फर्स्ट स्ट्रिंग हमारी लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर है सेकंड स्ट्रिंग से, तो वो क्या करेगा? पॉजिटिव नंबर रिटर्न करेगा, क्योंकि वो बड़ी है। बड़ी है मतलब अभी तो हमने स्मॉल और कैपिटल और स्मॉल का लिया। अगर मैं लू एप्पल एंड बॉल, तो बॉल का जो होगा वो होगा 66 एंड एप्पल का होगा 65। 65 माइनस 66 करेंगे, अगर ये S1 है ये S2 है, माइनस करेंगे तो क्या प्लस 1 आएगा। अगर हमारा जो स्ट्रिंग है वो रिटर्न कर रहा है पॉजिटिव, कंपेयर टू जो है वो पॉजिटिव रिटर्न कर रहा है, इट मींस आवर फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन आवर सेकंड स्ट्रिंग। अगर वो नेगेटिव नंबर रिटर्न कर रहा है, इट मींस आवर फर्स्ट स्ट्रिंग इज लेसर देन आवर स्मॉल स्ट्रिंग। ओके, इफ द फर्स्ट स्ट्रिंग इज लेक्सिकोग्राफिकली इक्वल टू द सेकंड स्ट्रिंग, वो दोनों बराबर होंगी, हम ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों बराबर हों। अगर दोनों बराबर हैं स्ट्रिंग्स, ओके, देन इट विल रिटर्न 0, बिकॉज हम क्यों क्या कर रहे हैं? सबट्रैक्ट कर रहा है दोनों के कोड्स। ठीक है, समिंग अप these three condition, if we can say if S1 is greater than S2, it will return positive. If S1 is less than S2, it will return negative, otherwise it will return 0. Also, when we compare two string in which either first or second string is empty, the method returns the length of the string. ठीक है, ऐसा भी केस हो सकता है कि if your first any of those two strings is empty but second string contains something, then what it will return? अगर first string empty है, the method will return negative. Negative of what? The length of the string. The length is 4, minus 4. Okay, now it will compare the length, क्योंकि length यहाँ पे different है, तो ये किससे माइनस करेगा? लेंथ से। यहाँ पर 0 लेंथ है, यहाँ पर 4 लेंथ है, तो माइनस 4 हो गया। अगर सेकंड स्ट्रिंग एम्प्टी है, द मेथड रिटर्न द पॉजिटिव नंबर दैट इज द लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग। दिस इज हाउ आर कंपेयर टू वर्क्स। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अब हम बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं, तो डोंट वरी अगर आपको क्लियर नहीं हुआ, उससे आपको काफी क्लियर हो जाएगा कि हाउ दिस कंपेयर टू वर्क्स, क्योंकि इसमें इस फंक्शन को हम प्रोग्रामिंग में भी यूज करने वाले हैं। S1 मेरी हेलो है, S2 फ्लैग है, ये हेमलो वैक्लो हेलो, मैंने अलग अलग काफी स्ट्रिंग्स लेके रखी है, मैंने ज्यादातर कोशिश किया सेम ले। ठीक है, अगर मैं S1 और S2 कंपेयर करूँ, दैट इज हेलो एंड फ्लैग, तो हेलो एंड फ्लैग। ठीक है, सो क्या रिटर्न होगा? इट इज रिटर्निंग 2, बिकॉज
अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो H के बाद आता है I, एंड I के बाद आता है J, F हमारा पहले आता है, तो यहाँ पे आ गया G और F। तो इन H और F के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 का। तो ये क्या रिटर्न करेगा? 2। बिकॉज और प्लस करेगा कि माइनस करेगा? H इज ग्रेटर एंड F इज स्मॉलर, तो ऑब्वियसली करेगा +2 रिटर्न। इट मीन्स आवर फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन आवर सेकेंड स्ट्रिंग। ओके, सेकेंड इज S1 इज कंपेयरिंग टू S3। तो S1 हमारी हेलो है एंड S3 हमारी हेमलो है। ठीक है, फर्स्ट लेटर दोनों के सेम है तो सेकंड पे आएगा, सेकंड लेटर भी दोनों के सेम है, थर्ड पे आएगा। अब ये क्या अलग कहाँ मिल रहे हैं? एल और एम, और एल और एम में कितने का डिफरेंस होता है? 1 का। अब माइनस की प्लस, तो एस वन पे हमारा एल है, एल इज स्मॉलर, एम इज ग्रेटर, तो ऑब्वियसली -1, बिकॉज S1 माइनस S2 होता है, तो -1 आएगा। एंड इट मीन्स आवर फर्स्ट स्ट्रिंग इज स्मॉलर देन आवर सेकेंड स्ट्रिंग। तो हमारी कौन सी स्ट्रिंग ग्रेटर हुई? दिस। अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे तो पहले हम इसको प्लेस करेंगे, सेकेंड हम इसको प्लेस करेंगे। नेक्स्ट इज S1 इज कंपेयरिंग टू S4, दैट इज हेलो एंड मैक्लो। तो यहाँ पर तो फर्स्ट लेटर ही डिफरेंट है, H और M, M इज ग्रेटर। अब कितने से ग्रेटर है उसको हम देख लेते हैं, HIJKLM, तो 1 2 3 4 5, आई थिंक 5 का डिफरेंस है। तो 5 का डिफरेंस है एंड विच इज ग्रेटर? M इज ग्रेटर, सेकेंड स्ट्रिंग इज ग्रेटर, तो H माइनस M हम करेंगे तो -5 आएगा। अब आप स्काई कोड से करना चाहो, आप नॉर्मल पोजीशन से करना चाहो, आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन एट द एंड आपको नहीं करना है, आपको कंप्यूटर से कराना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे कर रहा है, हाउ इट इज वर्किंग एंड व्हाट इट इज रिटर्निंग, किस फॉर्म में वो रिटर्न कर रहा है। ये आपको नहीं करना है, आपको नहीं पूछेगा कोई कि आपका -5 रिटर्न होगा कि 2 रिटर्न होगा, बट यू हैव टू नो कि भैया वो क्या रिटर्न करता है। माइनस करता है तो किस कंडीशन में करता है, प्लस करता है तो किस कंडीशन में करता है। बिकॉज वेन यू आर कंपेयरिंग इन द प्रोग्रामिंग कि भाई S1 इज कंपेयर टू S2, S1 इज कंपेयरिंग टू S2, तो अगर ये पॉजिटिव करता है रिटर्न, अगर ये पॉजिटिव रिटर्न कर मतलब S1 हमारी बड़ी है, तो हमें क्या करना है? अगर S2 अगर ये ग्रेटर देन 0 जा रहा है तो इट इज मीन S1 इज ग्रेटर, तो हमको क्या रिटर्न करना है, क्या हमको वर्किंग करनी है, अदरवाइज हमको क्या वर्किंग करनी है अगर S2 बड़ा है। तो ये हमको प्रोग्रामिंग पता होना चाहिए ना, हम प्रोग्राम करेंगे तो हमें ये सब चीज पता होनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम शोइंग ऑल दिस। नाउ S6 इज एम्प्टी। अच्छा, S5 रह गया। S5 इज हेलो, S1 इज हेलो। अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे, बोथ आर सेम, तो बोथ आर सेम है तो हमारी 0 रिटर्न होगा। S6 मैंने एम्प्टी ली है, S7 मैंने मी ली है। तो S6 और X6 और S7 को कंपेयर करेंगे तो इट विल रिटर्न -2, बिकॉज अब यहाँ पर लेंथ की बारी आ गई, लेंथ ही अलग है बिल्कुल, एक तो खाली है, तो लेंथ को कंपेयर करेगा। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, तो -2 हो गया। Now S4 is comparing to S6. S4 is Meclo and S6 is empty because now it will print the length of first string, that is 5, and second string is empty. So I hope it is clear how compare to works. एक और बार देख लेते हैं इसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। तो अगर मैं यहाँ पे लिया है ए एंड ए, वैसे ही लिया है मैंने, तो कैसे करेगा? अगर मैं S1 एंड S2 को कंपेयर करूंगी तो वो 0 टर्न करेगा, S1 एंड S3 को करूंगी तो भी वो 0 करेगा। बिकॉज अब यहाँ पे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। अगर ये डाउट आ रहा हो कि अब यहाँ पर क्या होगा, क्या फिर से इक्वल लगाना पड़ेगा, क्या करेंगे, क्योंकि अभी ये क्या एक ही ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करता है, ऑब्जेक्ट वाइज करता है या वैल्यू वाइज करता है? ये वैल्यू वाइज करता है, ये वैल्यू चेक करता है। ठीक है, तो वैल्यू वाइज देखेगा, कैपिटल है चाहे कहीं पर भी प्लेस दो, इट विल कंपेयर द वैल्यूज एंड इट विल रिटर्न 0। नाउ व्हेन आई कंपेयर दैट कैपिटल A टू स्मॉल a, तो -32 बिकॉज कैपिटल A इज ग्रेटर। नाउ अब आपने देखा, आप बोलो कैपिटल A ग्रेटर कैसे हो गया? मैंने अभी लास्ट स्टेटमेंट बोला कैपिटल A इज ग्रेटर, कैसे? कैपिटल और स्मॉल a में कैसे कंपैरिजन हो सकता है? दोनों लेटर्स तो सेम ही है। तो कंपेयर टू में यही चीज है। अगर आपको केस पे जाना है, अगर आपको देखना है कि भाई दोनों का केस सेम है, अलग है, क्या है, अगर आपको पता है कि दोनों स्ट्रिंग का केस सेम है, तो आप बिंदास खेलो कंपेयर टू। लेकिन आपको कंफर्म नहीं है कि कंपेयर टू में जो हम वैल्यूज डाल रहे हैं स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 की,
उन दोनों का केस अलग हो सकता है। तो आप यूज कर सकते हो सिंपली कंपेयर टू इग्नोर केस। इसमें वो केस को इग्नोर कर देगा अगर दोनों, जैसे कैपिटल ए और स्मॉल ए है, अगर मैंने बोला एप्पल एंड एप्पल, इन दोनों को क्या करेगा, कंसिडर सेम करेगा। ठीक है, केस को कर देगा इग्नोर। द मेथड रिटर्न 0 if the string is equal to other, the string ignoring case differences. A value less than 0 is returned if the string is less than the string. सेम वही वर्किंग है कि अगर छोटी है स्ट्रिंग s2 तो माइनस में रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो पॉजिटिव रिटर्न करेगा। the working is same, only difference is the case differences, that it will now ignore the case. So that's it in this video. I hope you have learned about compare to and understood how it will working and how we will use in our program. So that's it. Thank you everyone. Bye bye.